Very happy and prosperous New Year to all the participants, those who are here, because as of now, the first one of the year is remaining, so it's right time to wish on behalf of the entire government in place of Arunachal Pradesh. Most respected, today's chief guest, Sri Pema Khandu ji, the Chief Minister of Arunachal Pradesh. Most respected, Sri P.V. Sona ji, the guest of honor of today's program. Sri Kaling Moyong ji, for being spare your time to us by gathering here. All the MLAs, all the 7 MLAs, because time is running out, so I will not take none, I will not their name because we have not much time. So all the MLAs of different constituencies of the Siam Belt, respected, all the ZPM, ZPC, Mayor, Deputy Mayor, Councillor, Deputy Councillor, and other operator of the Pasighat Municipal Corporation, the guests from other part of the country, that is from Nagaland, Bisunlu Kent and his team, Hajarika ji from Assam. Above all, I will be committing mistake if I don't take the name of our founder member, because I believe and we believe as the government employees, because of their cooperations, their supports, their sacrifice, today COSAP is stand here now. That is Sri Patel Marek ji, Director, API, Mahi Anuji, Joint Secretary, Department of Administrative Reform, former President, Sri Gali Kamti ji, retired Principal, Sri Linia Roland ji, District Medical Officer, Alwa Western District, Sri Nili Likhatu, who happened to be my own elder brother, Assistant Engineer of PWD, former President of the COSAP, Muntu Mosam ji, Founder, General Secretary of the COSAP, Nam Pe Hom Chatok Khirme, former Women Wings President, Waipam, and Taken Samuel, Kalab Daram. आप सबका कंट्रीब्यूशन, आप सबका सैक्रिफाइस से आज कोसप जहाँ कहीं भी है, कोसप आज है। Because it's been 23 years, 24 years हो रहा है आज तक। तो आप सबका सैक्रिफाइस का वजह से हम लोग आज कोसप को देखने मिल रहा है। So my respect goes and my thanks goes to you all, sir. Now, apart from that, we have a galaxies of dignitaries here. DC, Eastern District Madam, respected, all my respect goes to on behalf of the entire Employee Fraternity Party Club Program Center Executive Committee, IGP sir, ADC Madam, SP sir, all HOD of the Eastern District Unit, President and General Secretary of all the 27 paramilitary units, and District President and General Secretary, those who come all the way from their different districts despite your hectic schedules. So, as far as COSAP is concerned, आप सब लोग जान गए होंगे कि COSAP क्या है, कैसे है। शायद कोई नया एम्प्लॉइज जो आया, कोई नहीं जानते होंगे। COSAP क्या है, आप सब आगे देख रहे हैं, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। बस इतना एक शब्द रखना चाहता हूँ कि COSAP को क्यों फॉर्म करना पड़ा। बहुत सारा एसोसिएशन है, यूनियन से हमारा विदिन द एम्प्लॉइज में डिफरेंट डिपार्टमेंटल बेसिस, कैडर बेसिस में है। COSAP से पहले भी था, लेकिन प्रॉब्लम को वेंटिलेट करने के लिए प्रॉपर विंडो नहीं मिल रहा था, अपना हिसाब से कर रहा था। वो सबको
प्रॉब्लम को देखने का बाद मैंने वन कॉन्फिगरेशन सेशंस ये डिसाइड करके हम लोग ने कोसप को वे बैक 2022 में 2002 में कोसप को फॉर्मेशन किया था। तो जब से फॉर्मेशन किया है कोसप ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत गवर्नमेंट का साथ में अपना मांग को रखने के लिए हम लोग की स्ट्रगल किया और हम लोग को दिया। और अगर मैं इस मंच के द्वारा आप सबके समक्ष कि हमको किया गया सरकार ने अगर वो नहीं बताने से हमसे बहुत बड़ा पाप होगा, और ये नया साल में ये पाप लेना मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए थोड़ा समय लेने से भी सरकार ने हमको हमारा मांग को क्या क्या है थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो 6 CPC को हमारा गवर्नमेंट ने, अरुणाचल गवर्नमेंट ने डिस्पाइट फंड टाइट जो भी बजट टाइट होके भी हमारा मांग को ऑनर करके हमको दिया है। तो 6 CPC का ड्यूरिंग 2007-8 समय में आप सबको मालूम है। उसके बाद में जो 30 मॉन्ट्स का एरिया उसको दिया है, सबको पता है। और उसी साथ में 6 CPC में जो नर्सिंग एलाउंसेस वगैरह उसको दिया है। हालांकि नर्सिंग एलाउंसेस का अभी 7 CPC का एलाउंसेस को मांग रहा है, शायद वो मांग जारी है। उसके बाद में जो हाउस रेंट एलाउंस का 6 CPC का दिया है। उसके बाद में 7th सेंट्रल पे कमीशन को भी उसमें हमको ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं कर पा। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने हमारा निधि को समझा, हमारा जरूरत को समझा और समझकर हम मांगने से पहले हम लोग को दे दिया है। इसके लिए बहुत जोरदार ताली डिजर्व करते हैं। थैंक यू सर फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग को इतना समझने के लिए थैंक यू। इस थ्रू दिस गैदरिंग आई वांट टू एक्नॉलेज यू ऑल की व्हाट गवर्नमेंट इज हम लोग को क्या प्रायोरिटी देता है आप लोग जानना है। कोई इंप्लॉय नहीं जानता है, नहीं जानते, कुछ अपना इशू को सब ज़्यादा बोलते रहता है। हमको जानना है कि वो क्या क्या हमको देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टॉप लोकेशन एलाउंस को भी हमको दिया। उसके बाद में सबसे एक तो तकलीफ वाला एक डिसीजन था फंडामेंटल रूल 56 में जो इनहेंसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज को लेके जो 58 से 60 इयर्स बनाने के लिए उसको इतना हमारा सुएंसा ग्रुप लोग भी बहुत प्रेशर किया था। विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑल द सुएंसा ग्रुप, आई मीन स्टूडेंट यूनियन एंड सोसाइटी एसोसिएशंस, मेनी सुएंसा ग्रुप्स वेर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिसीजन। बट देन हिम्मत दिखा के हमारा इन्फ्लुएंस का जरूरी को समझते हैं हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने पेमा खांडू जी ने उसको भी हम लोग को ग्रांट किया। डिस्पाइट जो बजट होने टाइट होने से भी हम लोग को ग्रांट किया है। उसके बाद में जो हाउस रेंट एलाउंस को 7 CPC का हिसाब से नहीं हो पा रहा था, तो उसको भी जैसे भी हो दुख तकलीफ होने से भी नहीं, हम इम्प्लॉइज को मदद नहीं करने से हम कैसे हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा, ये सोच के साथ में हमारा 7 CPC का हाउस रेंट एलाउंस को भी आपने हम लोगों को दिया। और साथ ही साथ ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो हम लोग का डॉक्टर लोग का वेटरनिटी का नॉन प्रैक्टिस एलाउंस को भी दिया कि जितना कोई डॉक्टर है जो अपना प्रैक्टिस करता होगा, बट गवर्नमेंट का रूल का हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करता है तो आपको एलाउंस नहीं देगा। तो कोई भी हमारा डॉक्टर बहुत दूर दराज इलाका में, कोई भी डॉक्टर टाउनशिप में है, उनको जो NPA जो नॉन प्रैक्टिस एलाउंस को लेने दिल है उनको दिया है। तो हालांकि अभी कोई डॉक्टर नहीं ले रहा है, सुना है, हाउ इट इज ट्रू आई डोंट नो, बट आई बिलीव डॉक्टर एसोसिएशंस हमारा बीच में भी है, वो समझते हैं गवर्नमेंट जो भी डिसीजन देते हैं मानते हैं और ऑनर क्या है, उनका मांग को भी ऑनर क्या है। सो इसके लिए सर दिल से थैंक यू। और जो हमारा जो 6 CPC में बहुत सारा पे एनोमलीज है, उसको भी बीच में हमारा जो हाई लेवल पे स्टैंडिंग कमिटीज में प्लेस करने से उसको भी सेटल करता है जेन्युइन को देख के। और जैसे जैसे हम लोग मांग रहता है उसको भी बीच में एक दिन वारंट सिचुएशन केस देख के स्टडी करके उसको भी टाइम टू टाइम ग्रहण कर रहा है। और जो सबसे एक आज का तारीख में तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है
हमारा डिपार्टमेंट में स्टेगनेशन वाला इशू है और हर डिपार्टमेंट में वो जो टाइमली बीपीसी नहीं होने का कारण उस चीज को हमारा टेन्योर में और जो हमसे आगे वाला भी जितना भी कोसप का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रहा बीपीसी को हम लोग ने एम्फेसाइज किया है कि बिकॉज ऑफ नॉन कंडक्ट डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी की टाइमली हमारा एम्प्लॉइज जो प्रमोशन नहीं होता है स्टेगनेशन बहुत डिले होता है। तो उस चीज को हम अच्छा से ब्रीफिंग किया है, स्टडी के केस को हमारा रिप्रेजेंटेशन को देखने के बाद में हमारा मांग से बढ़कर साल में 2 बार बीपीसी होने के लिए हमारा सरकार ने अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ये डिसीजन लेता है कि साल में 2 बार बीपीसी करने के लिए हमको देता है। तो सर इसके लिए भी दिल से थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर एम्प्लॉइज फैकल्टी इन अरुणाचल प्रदेश। बट हैविंग सेड दिस कि हमको ये कोई डिपार्टमेंट या कोई एम्प्लॉय शर्म भी पा सकता है क्योंकि सच को बोलना है कोई डिपार्टमेंट टाइमली बीपीसी गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर जारी करने के बाद भी टाइमली बीपीसी नहीं करा पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है बोलने से भी वो भी नहीं बताता है, वो भी हमारा बीच में अपना लेकुना है। उस चीज को जितना भी ऑफिसर्स या ऑफिसर्स या एचओडी जितना भी है उसको नोटिस कीजिएगा कि कल को होने से भी माय टीम इज देयर टू फॉलो आपका क्या प्रॉब्लम है बीपीसी टाइमली नहीं मिला सकने के लिए जब सरकार आपको करने के लिए दिया गया है तो वो एक प्रकार को पूछने वाला एक बात रहेगा। और देखा गया कि एक तो सर हम लोग ये जो नो ब्लैंकेट बैन बोल के हम लोग सुना था, लेकिन सर आपका लीडरशिप में एक ब्लैंकेट प्रमोशन भी टर्म लगाते हैं जो 2024-25 में इतना पुलिस पर्सनल को जो हेड कांस्टेबल से लेके एसआई लेवल तक एसआई लेवल से लेके आपका जो उसमें इतना मोर देन 150 ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स को मास प्रमोशन किया है कि इतना हम लोग को जितना साल से स्टेगनेशन था उसको इतना जोश दिलाया है, इतना जो फुर्ती दिलाया है, तो वो लोग दिल से टेस्ट देता है। और मैं भी ऑन बिहाफ ऑफ देम आल्सो मैं भी दिल से सर आपको टेस्ट देता है। और अभी हाल फिलहाल में एसआई से भी डीएसपी का बहुत काफी प्रमोशन हुआ है, मास प्रमोशन हुआ है। सर हमें आपका कंट्रीब्यूशन और आपका ग्रांट को देख के ये समझता हूँ कि आप हमारा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बहुत केयर करते हैं, प्यार करते हैं। ये बोलते हुए सर मैं एक दो चीज थोड़ा सा मैं एक तो रखना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा डिपार्टमेंट भी है, स्पेशली आई नो हेजिटेट टू मेंशन द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट आल्सो, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया। देखा गया कि स्पेशली जेई लेवल में इतना स्टेगनेशन काफी पड़ा हुआ है और उनका देखा जैसे उस पुलिस डिपार्टमेंट को जैसे मदद किया है या नर्सिंग को जैसे मदद किया है, अगर उस हिसाब में भी यहाँ में भी एक तो प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते से बहुत अच्छा होगा। ये मेरा एक तो मेरा ऑब्जर्वेशन का हिसाब में शेयर कर रहा हूँ। और सर बहुत सारा इशू जो दिया है लेकिन कुछ चीज को पूरा बोल नहीं पा रहे सर, आपका समय शॉर्ट होने का कारण से आपको ज्यादा नहीं बोल पाएगा। एवं और हमारा कोसप का बहुत बड़ा एक मांग था सर, ये जो गवर्नमेंट ने हमको हमेशा कोसप को बोलते रहता था कि आपका वर्क कल्चर, तो हम भी बोलता था कि हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंट्री प्रोसेस ही जब सही नहीं होगा तो वर्क कल्चर इंप्रूव नहीं होगा। ये चीज को अच्छा से स्टडी करने के बाद में हमारा पेमा खांडू जी का जो चीफ मिनिस्टर सीट में एक जो नीड को देखते हुए जरूरी को देखते हुए जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को भी आपने क्रिएट करवाया है, वो भी एक कोसप का एक तो बहुत बड़ा मांग था। और आज मैं विश्वास के साथ और प्राउडली बोल सकता कि जो भी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से आते हैं वो क्वालिटी वाला ही आए हैं, काम करने वाला भी आए हैं, सिंसियर वाला ही आ रहा है। इसलिए सर आपको भी दिल से थैंक यू कि वो जो हमारा मांग को सुनने के लिए और ग्रांट करने के लिए। और बहुत सारा आप लोग इंसिडेंट देखा होगा आज के तारीख में भी, कोई ऑफिसर्स को, कोई इंजीनियर्स को, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को मैन हैंडलिंग करता है, जबरदस्ती फोर्सफुली डोनेशन ये वो क्या क्या करते हैं, तो नहीं मानने पर मैन हैंडलिंग हो जाता है। एक समय में बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ये देखते हुए हमारा कोसप ने एक मांग रहा था कि तो
contain all such practices, there should be a common directorate. तो वो कॉमन डायरेक्टोरेट प्रपोजल को भी हमारा डायरेक्टोरेट सर्विस एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने भी उस चीज को आगे बढ़ाया है। तो उसको जरूरी को देखते हुए, मांग को देखते हुए आपने कॉमन डायरेक्टोरेट भी ग्रांट कर दिया, विच इज नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन देयर एट चिंपू। उसमें अराउंड 20 डायरेक्टर को एकोमोडेट करेगा। वो भी सर हमारा एक बहुत बड़ा मांग था। उसके लिए भी आपने सुना, जरूरी चीज को समझा और हमने जितना मांगा है उसमें से मैक्सिमम को आपने दिया। कुछ अभी भी हमारा मांग जारी है सर। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा कौशल ने एक तो हम लोग ने लैंड भी प्रोक्योर किया है। दिस इज इन्फॉर्मिंग जस्ट टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द अरुणाचल की आपका कोऑपरेशन से, आपका सपोर्ट से कौशल ने एक तो मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर का एक तो प्लॉट भी खरीद कर लिया है बोल के आप लोग को बताना था ये मंच के द्वारा। और जोरदार ताली बनता है उसके लिए। हम लोग उसमें क्या क्या एक्टिविटी करेंगे बाद में बताएंगे। और अपार्ट फ्रॉम बहुत सारा इशू है हमारा जो गवर्नमेंट जो हमारा मांग को माना है और आगे भी देगा उम्मीद करता है। और इतना सक्सेस होने से भी या कुछ मांग अभी भी बहुत जारी है जो कि आपको सर में अभी देने जा रहा हूँ। तो उसमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट, दिस इज नेशनल इशू अपार्ट फ्रॉम द बर्निंग इशू ऑफ द नेशन, ये कि एनपीएस को लेके इम्प्लॉइज बीच में इतना डिससेटिस्फेक्शन है सर। एनपीएस का पॉलिसी देखने से कभी कभी हम लोग दुख, इससे खुद को भी दुख लगता है। हम ओल्ड पेंशन सिस्टम में हम सोचता होगा कि ये कौन प्रेसिडेंट अपना ओल्ड पेंशन सिस्टम लेके जो न्यू पेंशन सिस्टम को ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है। आई एम मोर कंसर्न देन योर केस, क्योंकि मेरा अपना भाई है, मेरा अपना बहन है। और एनपीएस को अगर इतना आपका यूथफुल एज को, अपना लाइफ को गवर्नमेंट सर्विस में देने का बाद में आपका फ्यूचर कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। और यहाँ में पेंशन नहीं है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होने के कारण सर जितना भी अरुणाचल में जितना भी मोर देन 40,000 एम्प्लॉइज जो 2008 1 जनवरी 2008 के बाद जिसको भी रिक्रूट किया गया आज तक का मोर देन 40,000 एम्प्लॉइज लगभग हो गया। वो सबका सिंगल पॉइंट मांग है कि कुछ भी करके, कैसे भी करके अब एनपीएस को हटा के ओपीएस को वापस ला दो बोल के सबका मांग है। और सर मैं इस मंच के द्वारा इन फॉर्म ऑफ दिस मेमोरेंडम मैं सर आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमको सोल्यूशन को सर आप बताएं। हम उसको एनपीएस को हटा के ओपीएस में लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कुछ भी हम करने के लिए रेडी है। हमको एनपीएस जैसे भी हटा दीजिए, ओपीएस वापस ला दीजिए बोल के सर ऑन द इंटायर एम्प्लॉइज फ्रेटर्निटी ऑफ द अरुणाचल प्रदेश हमारा ये सबसे बड़ा मांग है। क्योंकि खुद भी एक तो एज ए ह्यूमन बीइंग अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आप खुद एक हम लोग एक खुद ह्यूमन बीइंग होकर भी सोचने से इतना लाइफ को सेक्रीफाइस करने के बाद में अगर फ्यूचर ही हमारा सिक्योर नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं, कभी कभी सोचता है कि जॉब करके भी क्या करेगा बोल के सच फीलिंग्स आर देयर। और ऐसा होने का कारण वो लोग सोचते कि कभी कभी इतना क्या मेहनत कर रहा हमारा जो फ्यूचर ही सिक्योर नहीं, ऐसा करके कभी कभी सिर्फ जो है इंक्लूसिव होना चाहिए वो भी कहीं कहीं में लैकिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एनपीएस। तो हमारा सिंगल एक पॉइंट है कि नंबर 1 मांग है कि एनपीएस को हटा के ओपीएस में वापस ला दीजिए बोल के। और कुछ स्टेट में हमारा देश में करीब 4-5 स्टेट है जो एनपीएस को हटा के ओपीएस में वापस लाया है। और एक बहुत सुंदर चीज है सर जीपीएफ में कि हमारा जीपीएफ में जितना भी एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूट करेगा वो पैसा हमारा स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहता है। कुछ अगर बदल करे स्टेट में कुछ प्रॉब्लम होने से भी फाइनेंशियल इमरजेंसी कुछ आता भी है तो वो पैसा को टेम्पोररीली यूज कर सकता है। मेरा अपना इफ आई नॉट फाइनेंशियली आई एम नॉट एक्सपर्ट, जस्ट दिस इज माय ओपिनियन। बट ये जो एनपीएस में इतना यहाँ से हम लाख पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, उसको स्टेट गवर्नमेंट देखने मिलता है
डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, कौन क्या होता है इनको खुद भी मालूम नहीं है क्या हो रहा है. दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग पॉलिसी आई थिंक, एंड आई नो दिस इज रॉन्ग पॉलिसी बिकॉज इट्स अनफ्रेंडली, इट वाज अनफ्रेंडली पॉलिसी. और इसलिए हम साथ चाहता है कि उसको आप काइंडली उस चीज को आपका वेर एवर कहीं होने से भी आप उस चीज को ध्यान देकर हमको नंबर 1 मार्क को आप देख लीजिएगा बोल के मैं इस मंच के द्वारा आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं मेरे नंबर अभी देगा. उसके बाद में नंबर 2 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 8 पे कमीशन. सर हाल फिलहाल में आप मालूम होगा जो सेंटर में 8 पे कमीशन गठन हो गया, 3 मेंबर कमेटी गठन हो गया. हालांकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ये पॉइंट को इसलिए ला रहा है कि अभी से हमारा जो स्टेट में इसका प्रिपरेटरी जो प्रिलिमिनरी जो प्लानिंग करना चाहिए अभी से कर लेना है कि बाद में 1 साल का बाद लागू होगा या 5 महीना का बाद होगा या 1-2 साल का बाद लागू होगा. जब भी लागू होने से भी कि ये एरियर देने के लिए पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ नहीं आना चाहिए. और अभी से बजट में अभी से मेंटली ये तरीके जाने कि हाँ मेरा इम्प्लॉयज को हमको देना है. ये हमको अभी से मेरा एक तो रिक्वेस्ट है कि अभी से ये जो 8 पे कमीशन को लेके अभी से मेंटली तैयारी हम लोग के लिए कर दीजिए बोल के कि एक्चुअली इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर एडप्टेशन ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ अरुणाचल प्रदेश. और उसके बाद में initiate necessary preparatory measures including budget management constitution of the state level committee to ensure smooth and timely implementation of the 8 pay commission. Ensure revised pay allowances and the other benefits implemented at par with the central government without undue delay. ये एक तो हमारा एम्प्लॉइज का जो मांग है ये 2 नंबर में है. उसके बाद में सर मेरा 3 नंबर मांग है कि इमीडिएट रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम नंबर AR 33/2/2025 जो हमारा एक जो रिपोर्टिंग सिस्टम को लेके है. उसमें ये ऑफिस मेमोरेंडम में ये कहता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशली डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करना की पावर डेलीगेट करता है कि कोई इम्प्लॉइज अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं मानता है तो उसको डायरेक्ट सस्पेंड करना है बोल के एक तो इन ब्रीफ में बता रहा हूँ. उस पॉलिसी को एज ए एम्प्लॉइज लीडर आई वेलकम. आदमी कोई उसको ये क्यों ऐसा वेलकम करता है सोच सकता है. आई वेलकम. व्हाई आई वेलकम इट बिकॉज कोई हमारा एम्प्लॉइज बीच में भी कुछ चीज तो नहीं मानने वाला है. अब लोग सब लोग एम्प्लॉइज आप लोग खराब बात है तो पाओ रिस्पेक्ट सब ठीक नहीं है. कोई हमारा बीच में थोड़ा इंडिसिप्लिन वाला भी है जो अपना ऑथोरिटी बुलाने से नहीं आता है. वो सब चीज को भी थोड़ा ध्यान देते हुए ये रिपोर्टिंग सिस्टम को जब सारी जो CCA रूल 1965 अंडर रूल 10 ऑफ द क्लोज 1 में क्लियर करते हैं कि किसी को भी अगर सस्पेंड करना है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी करना है, डिस्ट्रिक्ट से रिकमेंडेशन जाना है, डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलिंग अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट वहाँ से रिकमेंडेशन जाना है. ये क्लियर कट है. इसीलिए मैं उस ऑर्डर को मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली उसको रिकंसिडर कीजिए. ये मेथड को लेके हम ऑलरेडी सबमिशन कर चुका है कि ऑनरेबल एलानिक चीफ सेक्रेटरी को ऑलरेडी मैं सबमिशन कर चुका है. और इसलिए मैं चाहता कि आज तक वो कुछ डिसीजन नहीं आया. ऐसा नहीं चाहता कि उस चीज़ को रिकंसिडर करें और रिव्यू करें उसको फॉर द ग्रेटर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय. क्यों बोलने से उसमें पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज आर नॉट इंक्लूडेड दिया से जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गया या हमारा सिविल सर्विस ऑफिसर्स हो गया और जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो गया. तो मैं चाहता कि अगर उस परमिट में लाना है तो सबको लाइए, अगर नहीं लाना है तो नहीं लाना है, सबको नहीं लाना है. कि एज ए लीडर मेरा स्टेट फॉरवर्ड है. इसमें कोई मेरा अपना कॉलीग ग्रुप कोई एसोसिएशन या कोई उस पर्टिकुलर केडर का डिपार्टमेंट या ऑफिसर आपको खराब पा सकता है. खराब पाने से भी जो हमको सही लग रहा है वही हम बोलेगा. उस चीज़ को सर आप काइंडली रिव्यू कर दीजिएगा. और नंबर 5 में है सर हमारा जो नंबर 4 में है सर ये हमारा जैसे मैंने बोला कि
कोसप में पिछले 23 साल में 23 इयर्स में इतना आज तक आया। उस बीच में हम लोग का कोई एक्टिविटी सेंटर नहीं है, कोई प्रॉपर ऑफिस डेजिग्नेटेड ऑफिस नहीं है। देखता है कि बाकी स्टेट में हर अपना अपना एसोसिएशन का डेजिग्नेटेड ऑफिस है, एक्टिविटी सेंटर है, लेकिन अरुणाचल इतना बड़ा स्टेट होने का बावजूद भी हमारा कोई ऐसा डेजिग्नेटेड ऑफिस नहीं है, भवन नहीं है, सेंटर नहीं है। इसलिए सर हम इस मौका को एडवांटेज लेते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा कोसप ऑफिस बनाने के लिए, कोसप भवन बनाने के लिए विद फैसिलिटी ऑफ द लॉजिंग या कोई कॉन्फ्रेंस रूम सब फैसिलिटी का साथ में आप हम लोग के लिए, आपका एम्प्लॉइज के लिए हम लोग को प्रोविजन दीजिए ताकि हम लोग या में कोसप भवन बना सके, ऑफिस बना सके और हमारा प्रॉपर यूटिलिटी हो सके। और हम ऑलरेडी नियर बाई कॉमन डायरेक्टोरेट जहाँ कंस्ट्रक्शन करें उसी नियर बाई में ऑलरेडी हम मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर का हम लैंड एक्यूर करके रख चुका है, परचेस करके रख चुका है। सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए उसको भवन बनाने के लिए। वो एक हमारा 4th नंबर है। और 5th नंबर में सर ये है लेटरल एंट्री को लेके। लेटरल एंट्री में आज का तारीख में इतना है कि इतना हल्ला गुला हो गया स्टेट में, तो लेटरल एंट्री में मोर देन ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गया। 2018 में एडवर्टाइज किया वाला अभी तक रिक्रूट नहीं हो पा रहा है। जब 6 साल जब एबनॉर्मली डिले हो रहा था सर, आपके साथ में भी हमारा कोसप टीम ने 3-4 बार डिस्कशन किया है, तो आपका तरफ से भी बहुत पॉजिटिव एश्योरेंस था। देन वी वर एक्सपेक्टिंग कि दैट विल बी मटेरियलाइज। तो लास्ट ईयर तक मोर देन 6 ईयर तक कुछ नहीं हो रहा था। देन रिसेंटली आफ्टर मोर देन 7 इयर्स रिसेंटली देखता है कि 17 कैंडिडेट्स को लिस्टिंग करता है। तो वो लिस्टिंग करने के बाद में इतना न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है कि किस आधार पर ये 17 को लिस्टिंग किया गया, ये कोई रेशो सिस्टम को मेंटेन नहीं किया है और प्रॉपर आरआर को फॉलो नहीं किया है, बल्कि इतना एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस ब्लेमिंग इतना हो रहा था। देन आई इंटरवीन, तो इंटरवीन करके वहाँ पता चला कि सर सही में वहाँ में उस एडवर्टाइजमेंट में किस तरीका से शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, क्लियर कट मेंशन नहीं है और आरआर जो रेशो को लेके साइलेंस है। तो वो देखने के बाद में तो हम फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द जितना भी एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट के लिए ऑब्जर्वेशन को देखते हुए मेरा एक सर हम लोग का कोसप का तरफ से ओपिनियन एंड सजेशन है कि वो जितना भी एडवर्टाइज कर चुका है, अगर पर्सनल डिपार्टमेंट अगर सही किया है तो जो 17 कैंडिडेट लिस्टेड कर चुका है तो इमीडिएट एग्जाम कंडक्ट कराना है, इंटरव्यू कंडक्ट कराना है विदाउट डिले। बिकॉज उन लोग का गलती नहीं है, अगर डिपार्टमेंट गलती है तो रॉन्ग वे में नहीं जाना है। अगर डिपार्टमेंट गलत सही है तो उसको एग्जाम को कंडक्ट करा दीजिए, क्योंकि उस चीज़ को जानने के लिए पर्सनल कमिश्नर का साथ डिस्कशन करने के लिए काफ़ी कोशिश किया, समय नहीं दे सकने के कारण से हमको मीडिया में आना पड़ा। अदरवाइज एग्जैक्टली ब्रीफिंग क्या होता है मीडिया तक नहीं जाना था, तो ये एक प्रॉब्लम है। और फ्यूचर में ये जो सिस्टम को ये इतना एलिगेशन नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये एलिगेशन को हटाने के लिए होने से ये जो कोसप माय ओपिनियन एंड सजेशन, ये जो कोसप प्रेसिडेंट माय ओपिनियन सजेशन इज दैट कि उसको सिर्फ रिक्वेजिशन पर्सनल डिपार्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन को दे देना है। स्क्रूटिनी भी वहाँ से होना है, एक बटालियन भी वहाँ से होना है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट भी वहाँ से होना है, इंटरव्यू वहाँ से करेंगे नहीं करेंगे वो होना है। क्यों ये चीज़ को बोल रहे हैं? बिकॉज सर आई नो यू एज ए, आपको ये जो करप्शन को लेके आपका जीरो टॉलरेंस है आपका गवर्नमेंट में, ये हम मालूम है। और ये प्रैक्टिस करके आपको ऊपर में एलिगेशन होने देने से ये भी गलत होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कोसप का तरफ से ये सजेशन ओपिनियन है, उसको हम बिलीव करते हैं कि उस सजेशन या रिकमेंडेशन को आप फॉलो करेगा बोल के ये मेरा विश्वास है। और लास्ट में 6 पॉइंट में सर जो ग्रांट ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन जो 2005 और 2012 तक सर हम लोग को लीव ट्रैवल कंसेशन जो एनीवेयर इन इंडिया दे रहा था, तो बीच में अनफॉर्चुनेटली उसको एनीवेयर इंडिया को छोड़ के एनीवेयर इन अरुणाचल कर दिया। तो आज का तारीख में हम जब
अपना देश में घूमेंगे नहीं तो अपना कल्चर को कैसे सीखेगा? किसी का सोच विचार, किसी का कल्चर कौन एडवांस हो रहा है, हम कैसे सीखेगा सर? इसलिए सर हम चाहते हैं कि वो जो एनी अरुणाचल को छोड़ के एनी इंडिया को भी फटाफट रिवोक करके उसको कर दीजिए। और मैं सोचता कि वहाँ में ज़्यादा इतना रुपया पैसा भी इन्वॉल्व नहीं होगा कि उसको कर देने से आई एम एक्सपेक्टिंग कि सर आप तुरंत उसको करेगा होगा बोल के, हम मालूम है सर आप कर देगा बोल के। इसीलिए आपका वो जो ग्रांट अगर करता है तो एटलीस्ट लेट विजिट योर एम्प्लॉइज टू अदर स्टेट, लेट देम लर्न, लेट देम एक्सप्लोर वेयर इज व्हाट। तो नहीं ना सर हम सही ढंग से सीखेंगे। तो ये मेरा एक तो लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ये मेमोरेंडम है सर। और सर मेमोरेंडम को सर सबमिट करने से पहले एक दो बात मैं रखना चाहता हूँ सर। हमारा बहुत सारा लामेट एमएलए लोग भी है, वीडियो व्यू ऑन सर। यहाँ देखा है कि एज ए एम्प्लॉय लीडर हम जहाँ एक्सपीरियंस हुआ देखा है कि वी हैव ए 3 सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनली। एक तो लेजिस्लेचर है आपका, एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी है। जब लेजिस्लेचर में आप बिल पास करते हैं एज ए एग्जीक्यूटिव, हम लोग कभी कभी उस रूल को, उस कानून को लागू करने के लिए कोशिश करने से कभी कभी हमारा ये जो लेजिस्लेटर से भी कभी कभी इंटरफेरेंस आता है व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम पॉलिसी एज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो ऐसे होने से कभी कभी हम लोग को हमारा स्पेशली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को या एग्जीक्यूटिव एजेंसी को कहीं कहीं में तकलीफ हो रहा है सर। इसीलिए मैं ये डिस्कशन करने के लिए तो नहीं था, लेकिन इतना सारा गैलेक्सीज ऑफ एमएलए है, देन मैं फील करता हूँ कि टेक इट एज ए पॉजिटिव कि इट इज राइट प्लेस टू शेयर दिस ओपिनियन एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीडर की। उसको भी अगर हमारा एम्प्लॉयज अगर गलत करता है तो बुलाओ, समझाओ, गाली दो, नहीं मानता है तो आपका जो रूल है आप करो, लेकिन जब सही कर रहा है तो साथ दीजिएगा। और कभी कभी हमारा पब्लिक का प्रेशर में आके, वर्कर का प्रेशर में आके कभी कभी नहीं आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कभी कभी हमारा एम्प्लॉयज में भी प्रॉब्लम आ जाता है। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द रेस्पेक्टेड एंड मोस्ट ऑनरेबल एमएलएस। तो उसको आप टेक इट एज ए पॉजिटिव कि ऐसा नहीं कि आप लोग को मैं ये गलाते नहीं बोला कि आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, हम आज का ये जो कॉन्फ्रेंस में सर ऑल इंडिया से सर आने वाला है, ऑल नॉर्थ ईस्ट से आने वाला था, लेकिन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन का कॉन्फ्रेंस नासिक में सर कल से शुरू है। तो वहाँ होने का कारण से हमारा नॉर्थ ईस्ट का जितना भी एम्प्लॉय नेक्स्ट डेटा बोल के है फोरम से, वहाँ से सब नहीं आ पाया। सब लोग अभी सिंधी में है, नासिक में है, कल से कॉन्फ्रेंस है, नहीं आ पाया। अदरवाइज ये नॉर्थ ईस्ट का और पूरा आना था, नहीं आ पाया है। और हम लोग यहाँ कल आज शाम से हम लोग का टेक्निकल सेशन है, वी हैव ए 4 टेक्निकल सेशन। उस टेक्निकल सेशन में जितना भी 28 पेरिटल यूनिट यहाँ आया है और जितना भी 27 डिस्ट्रिक्ट यूनिट का आया है, दे आर कमिंग विद सर्टेन पॉलिसी, सर्टेन ग्रीवेंसेस। तो हम लोग का ग्रीवेंसेस को, हम लोग का इश्यू को लेके सर हम लोग टेक्निकल सेशन में डिबेट डिस्कशन करेगा। और डिबेट डिस्कशन करने के बाद में हम लोग एक तो लॉजिक कंक्लूजन में लाएगा, एक तो रेजोल्यूशन ये ड्रॉ करेगा। और रेजोल्यूशन का साथ में आपके साथ में हमारा जो न्यू टीम या नेक्स्ट टीम वाला जो भी आएगा, वो जो इसका साथ में सिलेक्शन इलेक्शन भी है, वो जो भी नया टीम बनेगा, और रेजोल्यूशन लाया वाला को आपका साथ में एज अप्राइजल और एडिशनल मेमोरेंडम में आपको सर मिलने आएगा। और साथ में आपको एक एश्योरेंस देता हूँ कि जो भी हम लोग मांग रखता है, हम लोग ऐसे अननेसेसरी चीज़ को सर हम लोग नहीं मांगता है। जो हम लोग देखता है, परखता है, हाँ ये सही है, हम लोग एनालिसिस करने के बाद में हम लोग गवर्नमेंट का सामने प्लेस करता है। और साथ ये भी मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि हमारा एम्प्लॉइज एक दो कोई हो सकता है, कोई इंडिसिप्लिन हो सकता है, बट आई बिलीव जितना भी हमारा एम्प्लॉइज है, सिंसियर है, अच्छा है, डेडिकेटेड है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर आपका रीजन में, आपने आपका इनिशिएशन में और आपका विजनरी लीडरशिप में आपने EOP सिस्टम बनवा दिया, जो कि बहुत एक एप्रिशिएबल, बहुत अच्छा चीज़ है। तो बना दे तो और एम्प्लॉइज को बचने जगह नहीं, कौन कहाँ क्या कमी है उसमें पूरा दिखाई देता है। तो वो इसलिए हमारा ये जो एम्प्लॉइज भी कोई कमी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपना रूल प्रोविजन एज आप गवर्नमेंट क्या एक्शन लेना है, गलत नहीं लेना है, लेकिन सही एक्शन लेना है। तो विद दिस एश्योरेंस मैं अपना बात तो यहाँ रखता हूँ।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जय कोसा, जय कोसा। थैंक यू।